औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 518 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। ये वाले जो MCQs हैं ये क्विज़ 3 एंड क्विज़ 4 में रिपीट हुई हैं। तो ये वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पस ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, लेकिन उनमें जो आंसर्स होते हैं वो बाज़ औक़ात करेक्ट नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम जो करेक्ट आंसर है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मेरी जो फाइल्स हैं इंशाल्लाह इनमें आपको 100% करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी MCQs का आंसर जो है बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना लाजमी है ताकि बाकी स्टूडेंट की भी करेक्शन हो सके। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडी शोज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? डिस्क्रिप्टिव, बेसिक, थ्योरेटिकल, एक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्शन। Homogeneous groups are part of dash procedure in experimental method. Local control, replication, randomization, independent variance. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है local control. Association research is a kind of dash research. Personal, applied, practical, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट, all of the given option. Action research studies dash issues. Constructive, experimental, developmental, all of the given option A is correct. Which of the following studies is not a type of survey method? Cause effect. Option A is correct. Which of the following variable is neutralized in experimental research? Control. Which of the following assumption is false for the law of single variable? तो ये आपने याद रखना है, ये 2-3 MCQs हैं, इनकी स्टेटमेंट चेंज है बट इनके जो ऑप्शन है वो इन्होंने सेम दिए हुए हैं। तो ये आपने याद रखना है, जिसमें सिंगल वेरिएबल के बारे में पूछा गया तो उसका करेक्ट आंसर है जीरो डेवलपमेंट। Action research is more about dash problem. Textual, teacher, cognitive, literary. Option B is correct, teachers. Survey research is most commonly used in dash research. Mathematical, scientific, statistical, social science. Option D is correct, social science. What is the basic constraint of survey research? Comparing variable, asking question, calculating numeric, limiting information. Option B is correct, asking questions. Which of the following option is not included in steps of survey method? Option A is correct, summary writing. Summary writing is not included in survey method. Teachers attempt to study their problem in dash research. Descriptive, basic, action, theoretical. Option C is correct, action. Homogeneous groups are part of dash procedure in experimental method. Option A is correct, local control. Which of the following assumption is false for the law of single variable? Option A is correct, zero development. Factorial design has feature in common with dash design. तो ये वाले मैं कह रही थी कि जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं वो सेम है, तो इसमें भी देखें वही ऑप्शन है। तो इसमें आपने याद रखना है फैक्टोरियल डिज़ाइन वाले जिसमें स्टेटमेंट होगी तो उसका आंसर होगा ट्रीटमेंट एक्स लेवल। Which of the following variable is neutralized in experimental research? Independent, modifier, control, dependent. Option C is correct, controlled. Which of the following is not a characteristics of experimental study? Passive. Option B is correct. Which of the following is not a characteristic of experimental study? तो वो फिर रिपीट हो रहा है, passive. Which of the following option is not include in the step of survey method? सर्वे मेथड में क्या इंक्लूड नहीं होता, ये भी रिपीट हो रहा है, समरी राइटिंग. Individual differences are responsible for dash error, for chance error. Option A is correct. Which of the following factor is usually studied in survey method? Human behavior. Option C is correct. Which of the following variable is neutralized in experimental research? Control. Teachers attempt to study their problem in dash research. Action. Which of the following type of researches is conducted in experimental design? Quasi. Option C is correct. Action research studies dash issues. Constructive, experimental, developmental, तो all of the given option A is correct. Homogeneous groups are part of dash procedure, local control. Which of the following researches studies practical problem? Action research. Option D is correct. बेसिक एक्सपेरिमेंट इज़ रेप्लिकेटेड इन डैश डिज़ाइन, इसमें भी देखिए उन्होंने वही ऑप्शन दिए हुए हैं,
तो जो बेसिक एक्सपेरिमेंट वाला जिसमें आप एक की वर्ड याद कर लिया करें स्टेटमेंट में से, इसमें तो आप याद कर लें बेसिक एक्सपेरिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैंडम रेप्लिकेशन। और जो फैक्टोरियल डिज़ाइन था उसमें था ट्रीटमेंट एक्स लेवल। सर्वे रिसर्च इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डैश रिसर्च, सोशल साइंस। Which of the following is not a characteristic of experimental study? Passive. Factorial design has features in common with dash design, ट्रीटमेंट एक्स लेवल। तो ये वही वाला मैं कह रही थी फैक्टोरियल डिज़ाइन। इसमें से आप की वर्ड याद कर लें फैक्टोरियल डिज़ाइन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रीटमेंट एक्स लेवल। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्स ट्रीटमेंट में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपने याद रखना है ट्रीटमेंट एक्स लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन इज फॉल्स फॉर द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल? तो इसमें आपने याद रखना है सिंगल वेरिएबल वाले में जीरो डेवलपमेंट। What is basic constraint to survey research? Asking question, calculating numeric, limiting information, comparing variable। तो सर्वे में बेसिकली यही होता है, क्वेश्चन वगैरह आस्क की जाते हैं, इंटरव्यू टाइप होता है, तो उसमें आस्किंग क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होमोजीनियस ग्रुप्स आर पार्ट ऑफ डैश प्रोसीजर इन एक्सपेरिमेंटल मैथड, रेप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएंस, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लोकल कंट्रोल। होमोजीनियस ग्रुप्स आर पार्ट ऑफ डैश प्रोसीजर इन एक्सपेरिमेंटल मैथड, local control. Survey research is most commonly used in research, social science. Option D is correct. Which of the following assumption is false for the law of single variable? Zero development. Which of the following factor is usually studied in survey method? Human behavior. तो ये वाला मिस प्रिंट है, इसको छोड़ दें। A direct quotation means using another person exact words. Which of the following terms means to label the material you have drawn from other writers? Referencing। इसमें कुछ फाइल्स में ये वाला जो आंसर है वो रॉन्ग उन्होंने मार्क किया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने पैराफ्रेजिंग लगाया हुआ है। मैंने कुछ फाइल्स देखी हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेफरेंसिंग है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्टेशन ऑफ बुक्स ओनली। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये 2 MCQs हैं। उसमें दूसरे में पूछा गया इश्यूज़ नंबर एंड वॉल्यूम्स, तो उसके लिए है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्नल्स। और जहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा बुक्स। इन दोनों में भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये आगे वही आगे है, वॉल्यूम एंड इशू नंबर आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेशन ऑफ जर्नल्स ओनली। तो ये आपने याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ सोर्सेज यू हैव एक्सप्लोर्ड वाइल रिसर्चिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक? ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिटरेचर रिव्यू। डिस्कशन सेक्शन गिव्स मीनिंग टू द डैश ऑफ द पेपर रिजल्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल कंपोनेंट इन अ रिसर्च आर्टिकल? रिसर्च आर्टिकल में ऑप्शनल कंपोनेंट क्या होता है? अपेंडाइसिस। 8 उसमें कंपलसरी कंपोनेंट्स होते हैं और एक जो होता है वो ऑप्शनल होता है, तो वो अपेंडाइसिस है। A research proposal is like a dash of your research outline. The part that summarizes usually in one paragraph the major aspect of the entire paper is called dash of the research paper, abstract. Which of the following is not a method of referencing? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आउटलाइनिंग। ये वाला भी फाइल्स में जो है वो गलत मार्क किया हुआ है उन्होंने, बहुत सारी फाइल्स में मैंने देखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आउटलाइनिंग। Which of the following is an optional component in a research article? Appendices। ये वाला रिपीट हुआ है, पहले भी आया हुआ था। Which of the following is not included in research proposal? Results। ये वाला थोड़ा सा ब्लर है। To avoid plagiarism, you must give dash whenever you use other person work credit. Which of the following is an optional component of the research article? तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं, appendices। Which of the following is not an act of plagiarism? सेल्फ राइटिंग। अगर आप खुद से लिखेंगे तो उसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा, वो किसी दूसरे का कंटेंट कॉपी करने से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल? सॉरी, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द आर्टिकल। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो टाइटल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ सोर्सेज यू हैव एक्सप्लोर्ड वाइल रिसर्चिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक? लिटरेचर रिव्यू। Discussion section gives meaning to the dash of the paper results.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ एन इनडायरेक्ट कोटेशन। अच्छा, ये वाला भी जो एमसीक्यूज है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। ये दो जो है ना वो सेम स्टेटमेंट्स हैं। एक में उन्होंने डायरेक्ट कोटेशन पूछा हुआ और एक उन्होंने इनडायरेक्ट कोटेशन पूछा हुआ। इनडायरेक्ट कोटेशन वो होती है जिसमें जो है ना किसी दूसरे के जो वर्ड होते हैं उसका जो कंटेंट होता है फ्रेज़ होती है उसको अपने वर्ड्स में हमने उसको कोट करना होता है, यानी कि इनडायरेक्ट कोटेशन होती है। डायरेक्ट एज इट इज़ उसको नहीं करना होता। तो जो इनडायरेक्ट कोटेशन है ना अपने वर्ड्स में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्स वाला जो ऑप्शन है वो फाइल्स में लगा हुआ था, लेकिन इसका ये वाला करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो समरी है। समरी में वैसे ही करते हैं ना, किसी भी चीज़ को समराइज़ करने के लिए हम उसको अपने वर्ड्स में लिखते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे डायरेक्ट कोटेशन पूछा जाए तो वर्स होगा। किसी भी नज़म की गज़ल की कोई आप लाइन उठाएं तो उसको आपने एज इट इज़ लिखना होता है ना, तो वो डायरेक्ट कोटेशन की जो एग्जाम्पल है वो वर्स है, और लेकिन यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्ट की पूछी हुई है तो वो समरी होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रेफरेंसिंग? आउटलाइनिंग। द फ्रेमवर्क ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ डैश कंपल्सरी कंपोनेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है उसमें टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं, बट 8 उसमें कंपल्सरी होते हैं और एक अपेंडाइसिस जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वो ऑप्शनल होता है। तो कंपल्सरी यहाँ पे पूछे गए हैं तो वो 8 है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेशन ऑफ बुक्स ओनली। A research proposal is like a dash of your research outline. Which of the following is the first component of the research article? Title. Volume and issues numbers are required for the station of volumes and issues number की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा journals. Put quotation mark around everything that comes directly from the text during कॉपिंग। तो कॉपिंग में ऐसा होता है ना कि हम डायरेक्ट किसी दूसरे के कंटेंट को कोटेशन मार्क लगा के कॉपी कर रहे होते हैं, पुट कर रहे होते हैं, तो वो इसका करेक्ट आंसर है कॉपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिसर्च आर्टिकल? रिसर्च आर्टिकल में फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? टाइटल। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें कंपोनेंट्स आपने 8 या 8 और मतलब के जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल भी शामिल करें तो वो 9 बन जाते हैं और जो कंपलसरी है वो 8 कंपोनेंट्स है। तो ये जो है ना कंपोनेंट्स ये वाले पेपर के सब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 कंपोनेंट्स के आपने नाम लाजमी याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एन इनडायरेक्ट कोटेशन? समरी। ये वाला वे फिर वही रिपीट हो रहा है, इनडायरेक्ट कोटेशन समरी। पुट कोटेशन मार्क अराउंड एवरीथिंग दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट ड्यूरिंग कॉपीइंग। A research proposal is like a dash of your research outline. Discussion section gives meaning to the dash of the paper results. A direct quotation means using another person's exact words. Option C is correct. Methodology section answer the question of dash in a research proposal. How? Option B is correct. Which of the following is not included in research proposal? Results. The framework of the research article consists of dash compulsory components. 8. Discussion sections gives meaning to the dash of the paper. Results. Volume and issues numbers are required for the station of journals. Which of the following is not included in research proposal? Results. The framework of the research article consists of dash compulsory components. 8. Which of the following is not an act of plagiarism? Self-writing. लास्ट MCQ है जी हमारे पास। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्टेशन ऑफ बुक्स ओनली। तो ये वाले जो MCQs थे ये क्विज़ 3 एंड क्विज़ 4 में जो MCQs इंक्लूड थे ये वो वाले थे, और जो चैप्टर क्विज़ में इंक्लूड थे ये उन्हीं में से MCQs आए हुए हैं। तो इनके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि क्विज़ में शामिल नहीं थे, तो उनमें से कौन से MCQs कौन से जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग ग्रैंड वीडियो बनाई है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने वो वीडियोज़ भी देखनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम्स एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।